all are preparing for IELTS and you are not preparing for the essays based on environment, then it is not going to be that worthy. तो अगर आप environment के ऊपर questions prepare कर ही रहे हैं, preparing essays on environment, then why don't include one question related to recycling? That why people do not recycle and how they can be encouraged to do recycling. But we cannot go it like this way. We have to choose a particular area where and what things we are going to recycle. So before starting today's, let's get done with the short introduction. Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने सारे लेसन्स जो हैं वो इंग्लिश कम हिंदी में रखे हुए हैं ताकि इंग्लिश की वो कैप आप लोगों को मिल जाए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और उनके एक्सप्लेनेशन को मैं हिंदी में इसलिए रखती हूँ ताकि वाइडर एरिया ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको रीच आउट कर सके और उसे समझ पाए। तो इसीलिए आप इस वीडियो के किसी भी एक सेकंड को मिस मत कीजिए, बिकॉज इन एवरी पॉइंट आई एक्सप्लेन समथिंग which is very important and that is not going to help you in the particular question only which I explain on the board, but you can also utilize those points in the other essays based on the same niche which is environment. तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का क्वेश्चन मैंने हमेशा की तरह आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है ऑन द बोर्ड। आई एम शिफ्टिंग माई कैमरा टुवर्ड्स द बोर्ड सो दैट यू ऑल कैन नोट द एंटायर टास्क इन योर नोटबुक्स एंड कैन अटेम्प्ट इट वाइजली। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं अपना कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ टुवर्ड्स द बोर्ड। So here we are with the question ready on the board. So as usual, as I do every day, here we have the question. I believe it is visible to you all. I'm shifting the camera a bit. So yes, here is the question we are going to do today, and if the board is invisible to you all, you guys can coordinate with my speech. Write down in your notebooks and must note it down in your notebooks. Try to attempt it, because if you will not attempt it, you won't know that how you have to use each point to make an essay valid and appropriate to score more than 7 in your final examination, in your final IELTS test which you are about to take this month or in the upcoming one. So let's start with it. The question for today is, most countries do not recycle their waste like paper, glass and aluminium cans. ज्यादातर देश जो हैं वो अपने वेस्ट लाइक एल्यूमिनियम कैंस हो गए या फिर ग्लास हो गया या फिर पेपर हो गया उसको रिसाइकल नहीं करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो इस बारे में है कि ज्यादातर देश जो है इन तीन चीजों को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करते हैं। क्वेश्चंस गिवन टू अस आर, व्हाई डज दिस हैपन एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एनकरेज रिसाइकलिंग। क्या कारण है कि लोग जो है इनको रिसाइकल नहीं करते हैं और किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो भी रिसाइकलिंग को अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में और उसे अपनी रेगुलर रूटीन का पार्ट बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज बेस्ड ऑन कॉजेज की क्या कारण है कि लोग जो है वो रिसाइकलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही वैलिड और इजी पॉइंट्स मैंने रखे हैं, क्योंकि द मोर यू विल गो बेसिक in your sentence structure, more you will be considered valid, and the more it would be possible for you all to make the other person reading your text understand that what you are trying to say and how you are supporting your opinion, that what are the causes and what are the solutions to that particular cause. So let's begin with the causes. I am shifting my camera a bit towards the board so that you all can write it properly, and here we go. So, मुझे लगता है आप लोगों को एक क्लोजर व्यू मिल चुका होगा मेरे पॉइंट्स का। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, dwellers find recycling process cumbersome. Cumbersome means difficult, challenging and inconvenient. जो dwellers है, dwellers word is used for people. So what people do, right? So the case in today's scenario is that recycling process is considered quite challenging and difficult for everyone. It is considered as mess by everyone, and it is true to some extent. It is a mess, but for sustainable living one has to adopt it, one has to follow it, one has to do it in their daily life. But this is one of the reasons that people are not
doing it, or people are not recycling the paper or aluminum cans or the other any substance that is around us which we are generating as debris. Debris means garbage, कूड़ा. तो पहला रीजन यही है कि लोगों को ये प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए लोग इसको नहीं करते हैं. So second point we have in the row is everyone around the globe living a hectic life, and in such a scenario thinking about ecology is an extra chore. Chore means task for many individuals. Ecology का means environment होता है. तो सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने ये बताया है कि पूरी दुनिया में लोग जो है वो बहुत ही बिजी लाइफ में जी रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है. ऐसे केस में थक हार कर वो आराम करने के बारे में सोचते हैं और उनको एनवायरनमेंट का कोई भी ख्याल नहीं रहता है. तो इसीलिए वो इसके लिए रिसाइकलिंग की तरफ जो है कोई भी थॉट भी नहीं देते हैं और वो बहुत ज्यादा जो है इंक्लाइंड रहते हैं अपने काम, अपनी बिजी लाइफ और अपने कंफर्ट की तरफ. सो सेकंड पॉइंट इज दिस. Now we are moving to the third point, and I have explained the third point in two areas, that how you can explain it wisely and in a very valid manner. The third point we have right now is lack of space is also one of the reasons for not adopting reprocessing. Reprocessing word is used for recycling, since people dislike accumulating garbage at homes. तो हमारा थर्ड रीजन ये भी है कि लोगों के पास जगह की ऑलरेडी कमी है, इसीलिए वो रिन्यूइंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हैं. कम होने के कारण वो किसी भी तरह के कूड़े को इकट्ठा करना अच्छा नहीं समझते हैं. सो आई हैव डिवाइडेड इट इन सब 2 points. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज सब पॉइंट्स एज एन एग्जाम्पल. और कैसे करना है आप लोगों को कि किस तरीके से जगह की कमी के कारण लोग जो गार्बेज इकट्ठा नहीं करते हैं और रिसाइकल नहीं करते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. Masses allocate a small portion to keep trash cans and they prefer to dispose of. Dispose of का मतलब होता है डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना. All the garbage collected in a day instead of keeping it for reuse. जितने भी लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में भी डस्टबिन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया हम लोगों ने रखा होता है और सारा कूड़ा जो है वहीं पे इकट्ठा किया जाता है. उसके अलावा कूड़े को स्कैटर करना, गार्बेज को स्कैटर करना किसी भी हाउस होल्ड को पसंद नहीं होता है. यही करते हैं कि उस कोने को भी साफ रखा जाए और वो रोज के कूड़े को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इट फॉर रिसाइकलिंग. तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया जो कि हमारा रिसाइकलिंग से रिलेटेड है. Then we have most people in bigger cities are living in tiny apartments where they cannot even accommodate their own preferred valuables. तो ज्यादातर जो है लोग बड़े शहरों में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जहाँ पे वो लोग अपनी जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं कर पाते हैं. ऐसे केस में सारे वेस्ट को इकट्ठा करना ताकि हम लोग आगे चलकर उसे रिसाइकल कर सके इज वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड impractical for them, and that is why they say no to recycling. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ स्पेस से रिलेटेड. और इसके एरिया में आप कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर आप ये सिंगल पॉइंट भी चूज करते हो तो आपकी आराम से 8 to 9 sentences 8 to 9 लाइन जो बहुत आसानी से बन जाएंगे सिंगल पॉइंट के साथ. और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसलिए दे दिए हैं आप लोगों को ताकि अगर आप लोग को क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना आकर, प्रॉब्लमेटिक फॉर्मेट में ना आकर, अगर ये एग्री और डिसएग्री के फॉर्मेट में आता है तब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी रहे और आपको ज्यादा मुश्किलात उसमें ना आए. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था. अब आगे पॉइंट्स के लिए मैं जो है कैमरा थोड़ा सा और डाउन कर रही हूँ ताकि आप लोग नीचे वाले पॉइंट्स को देख सकें अच्छे से. सो हियर वी हैव द पॉइंट्स. सो the next point we have in the row is most of the people only know the term of recycling. Unfortunately, they are unaware about the methods and steps involved in it. ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि रिसाइकलिंग नाम की चीज होती है, बट वो क्या होती है, कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, मेथड क्या होता है उसे करने का, इस बात की जानकारी नहीं है. दैट मीन्स लैक ऑफ इनसफिशिएंट अवेयरनेस, इनसफिशिएंट नॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट पीपल आर कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम रिसाइकलिंग. तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है. देन नेक्स्ट पॉइंट इन द रो इज insufficient equipments and resources are also contributing to generate ill habits मतलब बुरी आदतें towards environment. हमारे पास ना ही मशीनरी है ना ही रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है रिसाइकलिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, जिसके कारण लोग जो है रिसाइकलिंग नहीं करते हैं और रिसाइकलिंग जो है और इन्वायरमेंट के लिए जो है इको फ्रेंडली बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं.
The last point, the second last point we have is companies are making non-durable products. कंपनीज भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज ओनली वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दे आर मेकिंग non-durable products that are unproductive for a very short period of time. तो लोगों के पास चीजें जो हैं थोड़े समय की आती हैं, उसके बाद उनको पता होता है उन्हें नया लेना है, एक थॉट उनके माइंड्स में जनरेट कर दिया गया थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स दैट व्हाई यू आर कीपिंग दिस, व्हाई टू स्टॉप एट दिस, यू शुड गो फॉर एन इम्प्रूवमेंट, यू शुड गो फॉर एन अपडेट, इज समहाउ इंक्रीजिंग द थ्रोअवे कल्चर एंड इट ऑल्सो लीडिंग टू encourage ill habits among citizens to not recycle their waste. The last point in the row is increase in the purchasing power. लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, लोग कहते हैं कि रिसाइकलिंग को करने का क्या फायदा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो we should buy the products at our ease and we can pay for them. So that is why they never look after renewing any product they have already used and they always go for newer products instead of recycling the older one. तो ये रीजंस हैं सारे जिसके कारण लोग जो है वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और रिसाइकलिंग से पूरी तरह दूर है. तो मैं आप लोग को एक क्लोजर व्यू सारे कॉजेस का दिखा देना चाहती हूँ. हियर वी हैव ऑल द कॉजेस. मुझे लगता है आप लोगों ने मेरी स्पीच के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा. अगर आप लोगों ने नहीं भी किया है तो अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बड़ी सफाई से मैंने जो है क्लोजर व्यू दिखा दिया है सभी कॉजेस के पॉइंट्स का, तो आप लोग अपने नोटबुक्स में इन्हें नोट डाउन कर सके. एंड प्लीज नोट देम डाउन क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव मेंशन्ड और ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में जो कि रिसाइकलिंग और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो. So this is all about causes. Let's move to the solution part now and I am shifting my camera upward. And here we have these solutions. So let's move to the solution area precisely. The first solution that can be taken to encourage people, to motivate people that they should follow recycling, they should do recycling is people must be enlightened with the supremacy of renewing. रिसाइकलिंग की वैल्यू उनको बताई जाए कि रिसाइकल करने से उनको जिंदगी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा. काफी सारे जो वॉलंटियरिज्म जो है हमें देखने को मिलेगी इन द फील्ड ऑफ रिसाइकलिंग क्योंकि लोग इसके बारे में अभी जानकार नहीं है जिसके कारण वो रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं. To exemplify, including recycling in school curriculum can ameliorate this problem. Ameliorate means improve. तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि अगर स्कूल्स में करिकुलम के अंदर एक सब्जेक्ट रिसाइकलिंग बेस्ड रख लिया जाए, चाहे वो एडिशनल सब्जेक्ट का ही काम करे, वीक में उसकी 2 ही क्लासेस लगाई जाए, स्टिल children will be aware about the importance of recycling and they will start doing it. And the next generation is the only answer to every problem because if they will start doing something for the planet, it will definitely going to ameliorate and alleviate all the problems that are related to the planet and its core. तो हमारा ये पहला point है. Then the second point is government should reward individuals and entities that promote and opt recycling and sustainable living in the form of rewards, tax rebates, इंसेंटिव्स एंड सो ऑन. गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो इंडिविजुअल्स या जो कंपनीज जो है रिसाइकलिंग को प्रमोट करती हैं या रिसाइकलिंग करती हैं या और उसको लोगों को भी इनकरेज करती हैं, उनको जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करें, रिवॉर्ड्स दे ताकि बाकी भी वॉलंटियर करें इस चीज के लिए. बिकॉज पीपल might not do something as social responsibility, but if they will be given some benefit, they will definitely take some initiative to do recycling. So this is one of the major points and we cannot avoid it. तो आप लोग ये point लिख सकते हैं उसमें. Then third point है हमारा solution का. A special day can be accredited to celebrate reprocessing such as recycling day, recycling day, नेशनल रिसाइकलिंग डे, लेट्स रिसाइकल वीक एंड सो ऑन. कह सकते हैं कि हम लोग या गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल डे जो है रिसाइकलिंग के नाम कर सकती हैं.
इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस आएगी। जैसे कि नेशनल रिसाइकलिंग डे, हम लोग वर्ल्ड योगा डे बनाते हैं, नेशनल योगा डे मनाते हैं, जिसके थ्रू लोगों को योगा की इम्पोर्टेंस पता चलती है। इन द सेम वे जब रिसाइकलिंग डे या रिसाइकलिंग वीक मनाया जाएगा, पीपल विल डेफिनेटली टेक सम इंटरेस्ट टू नो अबाउट इट एंड टू अडॉप्ट इट इन द रियल लाइफ, बिकॉज इट इज रियली एन इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ लिविंग, अ सस्टेनेबल लिविंग। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप लोग जरूर इंक्लूड करें अपने सॉल्यूशंस के अंदर। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हियर इज फोर्थ वन, and I'm shifting my camera a bit to the downside so that you all can note it down properly and clearly. So yes, here we have the fourth point. Media can play a principal role in illuminating people about the methods of recycling, as when Cosmos would be able to decipher how to deal with glass, aluminium and paper waste, they will volunteer towards it. मीडिया जो है एक प्रिंसिपल रोल का मतलब होता है एक बहुत ही की रोल, मेन रोल निभा सकती है लोगों को जागरूक करने में रिसाइकलिंग के मेथड्स के बारे में, कि किस तरीके से, कॉस्मोस मतलब पीपल, कि किस तरीके से लोग जो हैं ग्लास, एल्यूमिनियम और पेपर वेस्ट को रिसाइकल करने को डिसाइफर कर सकते हैं, क्लासिफाई या समझ सकते हैं, और वो लोग उसकी तरफ वॉलंटियरिज्म करेंगे, वॉलंटियर करने का मतलब है कि दे विल टेक इनिशिएटिव टू डू समथिंग as an act of recycling. Next point we have in the row is investment should be done in the machines that can make recycling easier. जैसे हम लोगों ने कॉसेस में पढ़ा है, मैंने आप लोग को बताया है कि the one main reason for people to not recycle the above mentioned products is insufficiency of resources and machinery. So governments, it is the onus of government to invest in certain machinery that can help them to recycle, and it should be made available to all the households, especially the companies, so that they can motivate others to do recycling. The last point in the row is through social media campaigns, masses should be made known about the repercussions of ओवर ऑक्यूपाइंग लैंडफिल साइट्स। आप लोग जानते हैं लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल। लैंडफिल साइट्स वो होती हैं जहाँ पे सारा जो ड्राई कूड़ा होता है, ड्राई गार्बेज होता है, उसको एक्यूमुलेट करके रखा जाता है। बट क्यूबिक मीटर्स में पूरे वर्ल्ड का, ग्लोब का जो है वो वेस्ट जनरेट करने का क्वांटिटी है इतना बढ़ चुका है कि सारी लैंडफिल साइट्स जो है बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाई होती जा रही हैं, जिसके कारण ज्यादा एरिया जो है हमारे अर्थ का वो वेस्ट कलेक्ट करने में, रखने में जो है यूटिलाइज हो रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू लोगों को ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से लैंडफिल साइट्स के बढ़ने से उनकी लाइफ पे असर पड़ेगा और कैसे उनका एनवायरनमेंट उस चीज को डील अप नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी चैलेंजेस अराउंड अस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सो वी कैन नॉट क्रिएट वन मोर प्रॉब्लम फॉर द अर्थ एंड वी हैव टू डील इट with this way, because on social media there are so many people that are connected and they can be enlightened through a single platform about this issue, and this might act as a positivity for the future generations, as because by this way they will start taking some initiative into recycling and reprocessing the products they use in their daily life to renew and reuse it. And 3 R's we always know: renew, reuse and recycling, all are very important parts of our environment and for sustainable living. तो ये हमारे थे सारे ही, तो ये हमारे सारे सोल्यूशन के पॉइंट्स थे। मुझे लगता है आप लोगों ने मेरी स्पीच के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सभी को जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी भी आप देख सकते हैं, मैं क्लोजर व्यू जो है पूरे पॉइंट्स का दिखा रही हूँ, आप लोग यहाँ से भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो पूरे टास्क को अटेम्प्ट करके देखना मत भूलिए, बिकॉज अगर आप लोग सिर्फ पॉइंट्स को नोट डाउन करके छोड़ देंगे तो इट वुड नॉट बी दैट वर्दी, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू एड वैल्यू टू योर लर्निंग, टू योर राइटिंग, टू योर IELTS journey. So do practice it and try to share it with all your friends and family members who are about to take their final IELTS test in this month and in the upcoming one, because this question is very important from the exam point of view and it could come in your next examination. So do not miss it. Do note it down in your notebooks and share it with your friends and family. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. Next time I'll meet with you all again with some informative content on IELTS, and I will try to make this journey as easy as for you all. Offline learning, you can also join English High. The contact details are written on the screen below and you can call me over there.
Till then, I'm taking your leave. Bye bye.